کیا آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں؟ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی رہائش گاہ کہاں پر ہے؟ آئیے روایات کی طرف نظر کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا، اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو بھی مخفی رکھا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ خلفائے بنی عباس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کی روایات اور احادیث کے روح سے بخوبی جانتے تھے کہ 12ویں امام مہدی علیہ السلام ہی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے گھر پر پہرے دار متعین کر دیے تھے۔ یہاں تک کہ مورخین کا کہنا ہے کہ معتمد عباسی نے دائیوں کو بھی حکم دیا تھا کہ کبھی کبھی ناگہانی طور پر اور بن بلائے سادات کے گھروں بالخصوص حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو جایا کریں اور گھروں کی تلاشی لیا کریں اور آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے حالات سے آگاہ ہو کر دربار کو خبر دیا کریں۔ اس قدر امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے وقت پابندی تھی کہ ایک کنیز بنام ثقیل گویا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی خاطر حاملہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس کو 2 سال تک نظر بند رکھا گیا، اور جب حکومت وقت اس کی عدم حاملگی سے مطمئن ہوئی تو اس کو رہا کر دیا۔ ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام کو عام لوگوں سے خفیہ رکھا گیا، یہاں تک کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات میں انبیاء کی سنتیں ہیں، اور ولادت کا مخفی ہونا اور ان کا لوگوں سے دور رہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ صاحب الامر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت خلائق سے پوشیدہ ہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے۔ اور اسی طرح شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے مشکلات و مسائل اور اللہ کی آخری حجت کی ولادت کے خبر پانے کے لیے سلطان وقت کی وسیع تلاش اور بے تحاشا کوششوں کے پیش نظر آپ علیہ السلام کی ولادت کو عام لوگوں سے خفیہ رکھا گیا۔ تاریخ میں ولادت کا خفیہ رکھا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کو بھی خفیہ رکھا گیا تھا، کیونکہ بادشاہ وقت کی طرف سے ان کے قتل کیے جانے کا خدشہ تھا۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو بھی خفیہ رکھا گیا، کیونکہ امام علیہ السلام کے قتل ہونے کا بھی خدشہ تھا۔ بس اس کے بعد اتنی سختیوں کے باوجود حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی اماں جناب سیدہ حکیمہ خاتون نقل کرتی ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھ کو بلوا کر فرمایا کہ پھوپھی جان آج ہمارے یہاں قیام کریں، کیونکہ آج 15 شعبان کی رات ہے اور خداوند متعال آج رات اپنی حجت کو جو روئے زمین پر اس کی حجت ہے ظاہر فرمائے گا۔ جناب سیدہ حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی ماں کون ہے؟ تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ماں نرجس خاتون ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ان میں حمل کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا بات وہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب سیدہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں آئی اور سلام کیا اور اس کے بعد میں بیٹھ گئی۔ تو اس کے بعد جناب سیدہ نرجس آئیں اور مجھ پر سلام کیا، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اے میری سیدہ اور میرے خاندان کی سیدہ آپ کیسی ہیں؟ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ تم میری اور میرے خاندان کی سیدہ ہو۔ تو اس کے بعد جناب سیدہ نرجس میرے اس کلام سے ناراض ہوئی اور کہنے لگی پھوپھی جان یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ اے میری بیٹی خداوند متعال تمہیں ایسا فرزند عطا کرے گا جو دنیا اور آخرت کا سید و سردار ہے۔ اس کے بعد جناب سیدہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نماز کے لیے بیٹھ گئی اور میں نے نماز ادا کی اور روزہ افطار کیا اور اپنے بستر پر جا کر میں سو گئی۔ آدھی رات کو جب میں نماز تہجد کو ادا کرنے کے لیے اٹھی اور نماز پڑھ لی، اس وقت میں نے دیکھا تو جناب سیدہ نرجس سو رہی تھی۔ تو اس کے بعد میں نماز کے بعد کے اعمال کے لیے بیٹھ گئی اور پھر سو گئی، اور اس کے بعد اچانک خوف زدہ ہو کر جاگ اٹھی تو دیکھا کہ اس وقت جناب سیدہ نرجس خاتون
खातून भी सो रही थी, तो उसके बाद फिर मैं सो गई। और उसके बाद जब मैं नमाज फजर को अदा करने के लिए उठी तो मैं बाहर आई और फजर की तलाश में आसमान की तरफ देखा कि फजर अव्वल तुलू कर चुकी है और जनाब सैयदा नरजिस खातून अभी तक सो रही हैं। तो उसके बाद शक मेरे दिल पर आरिज हुआ। अचानक हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने कमरे से सदा दी कि ए फूफी जान, अजलत से काम मत लें क्योंकि अमर करीब हो चुका है। तो जनाब सैयदा हकीमा खातून कहती हैं कि मैं बैठ गई और सूरह सजदा और सूरह यासीन की तिलावत में मसरूफ हुई। इसी असना में मैंने देखा कि जनाब सैयदा नरजिस खातून हिरासा होकर उठी और मैं फौरन उनके पास पहुंची और उनसे कहा कि आप पर अल्लाह की रहमत हो, क्या कुछ महसूस हो रहा है? तो उस वक्त जनाब सैयदा नरजिस खातून कहने लगी कि फूफी जान, हाँ महसूस कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा कि अपने ऊपर काबू करो और दिल को मजबूत रखें क्योंकि वही होने जा रहा है जो मैंने कहा था। और उसके बाद जनाब सैयदा हकीमा खातून कहती हैं कि मुझ पर भी और जनाब सैयदा नरजिस खातून पर भी ज़ौफ़ तारी हुआ और अपने सैयद सरदार हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर मेरी जान में जान आई। और जैसे ही कपड़ा मैंने उनके चेहरे से उठाया तो अचानक मैंने क्या देखा कि मेरे सैयद सरदार हजरत इमाम ज़माना हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को देखा, जो हालत सजदा में थे और आप अलैहिस्सलाम के सजदे के सातों आज़ा, पेशानी, हथेलियां, घुटने और पाँव के अंगूठे जमीन पर थे। और मैंने आप अलैहिस्सलाम को आगोश में लिया और देखा कि आप पाको पाकीज़ा हैं। और उसके बाद अबू मोहम्मद हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फूफी जान, मेरा फर्जंद मेरे पास लाएं। तो उसके बाद मैंने हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास ले गई। और उसके बाद हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने पाँव को फैलाया और फर्जंद को पाँव के दरमियान करार दिया और आप अलैहिस्सलाम के पैरों को अपने सीने पर रखा। और उसके बाद हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक उनके मुंह में रख दी। और उसके बाद हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपना एक हाथ आप अलैहिस्सलाम की आंखों, कानों और बदन के जोड़ों पर फेरा। और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे फर्जंद बोलो। तो उसके बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अशहदु अन्न अलीयन अमीरुल मोमिनीन। और उसके बाद दूसरे अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम को दुरूद और सलाम का हदिया भेजा। और उसके बाद जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत हो चुकी और उसके बाद जब खलीफा वक्त मोतमद अब्बासी को हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की बीमारी की खबर मिली तो उसने अपने 5 काबिल एतमाद अफसरों को हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर की निगरानी पर मुतय्यन किया और अपने काज़िल क़ुज़ात को हुक्म दिया कि वो भी अपने 10 काबिल एतमाद अफराद को इमाम अलैहिस्सलाम की निगरानी के लिए तैनात करे। और हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीयत में अपने तमाम अमवाल को अपनी वालिदे माजिदा के नाम किया, लेकिन बनी अब्बास ने तमाम अमवाल आप अलैहिस्सलाम की वालिदा को मिलने नहीं दिए और निस्फ अमवाल पर अब्बासियों की मदद से जाफर ने कब्जा किया। और उसके बाद जब हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो उसके बाद अब्बासी खलीफा ने एक गिरोह को आप अलैहिस्सलाम के घर भेजा जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के घर और अमवाल को मुकफ्फल कर दिया और आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद को तलाश करने की कोशिश की और कनीजों का भी दाइयों से मुआवना करवाया कि कहीं उनमें से कोई हामिला न हो। और सुकैल नामी कनीज को हामिला होने के शुबे की बिना पर उसे अपने साथ ले गए और 2 साल तक नजर बंद रखा और बाद अज़ां रिहा कर दिया। हजरत इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सन 255 हिजरी में पैदा हुए, जिसके बाद आज तक 12 सदियां गुजर चुकी हैं। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक की ये तवालत इंसानों की मामूली उम्र से मुताबिकत नहीं रखती। शिया मुतकल्लिमीन ने हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की उम्र की तवालत की आम इंसानों की उम्र से अदम मुताबिकत के सिलसिले में उठने वाले सवालात के मुख्तलिफ जवाबात दिए हैं। बाज़ मुतकल्लिमीन ने साइंसदानों की तजुर्बाती हुसूल याबियों से इस्तेनाद करते हुए साबित किया है कि तवील उम्र मुमकिन है। मसलन लुत्फुल्लाह साफ़ी गुलपायगानी ने मगरबी साइंसदानों के मुतअद्दिद अक़वाल नकल की हैं जिनका कहना है कि इंसान 800 से 1000 साल तक जिंदा रह सकता है। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की लंबी उम्र के अकली जवाबात।
पहला जवाब यह है कि मौजज़ा। हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की उम्र का लंबा होना एजाज की बिना पर है और खवारिक के आदात में से है। और दूसरा नंबर, अल्लाह का इरादा इंसान की उम्र की तवालत और दवाम पर ठहर सकता है और उसमें कोई रुकावट नहीं है। और तीसरा नंबर, इंसान का नफ्स जिस्म का इंतजाम रखता है और उस पर तसल्लुत रखता है। अगर इंसान का नफ्स इस कदर ताकतवर हो जो इंतजाम के साथ जिस्म पर विलायत भी रखता हो तो वो इंसान के जिस्म को तवील अरसे तक जिंदा रख सकता है। और चौथा नंबर, बका इंसान में जाती तौर पर मुमकिन है और अदम बका आरिज होने वाले उमूर का नतीजा समझी जाती है। और आर्जी उमूर भी मुमकिनुल अदम है और उनका न होना और मादूम हो जाना मुमकिन है। तो अगर आर्जी उमूर और असबाब न हो तो बका हासिल हो सकती है। और पांचवा नंबर, जब हजरत अजीज अलैहिस्सलाम का ताम और शराब 100 साल गुजरने के बावजूद बाकी और तरोताजा था, हालांकि उसमें रूह भी नहीं थी, तो इंसान साहिब रूह है तो उसको बतरीके औला और अकवा मामूल की उम्र से ज्यादा तवील उम्र का हामिल होना चाहिए। और छठा नंबर, तारीखी रिवायात और उनके वाक़े होने के पेश नजर एक शय के इम्कान की आला तरीन दलील उसका वाक़े होना है। मुसलमानों का अकीदा है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, जबकि उनकी उम्रें हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की उम्र से कई गुना ज्यादा तवील हैं। और अगर आप तारीख में देखें तो अबू हातम सजिस्तानी ने अपनी किताब अल-मुअम्मरून वल वसाया में उन अफराद का तज़किरा किया जिनकी उम्र गैर मामूली और बहुत तावील थी। और यहाँ तक कि आसमानी कुतुब तौरात, इंजील और कुरान में ऐसे इंसानों का तज़किरा आया है जिनकी उम्रें बहुत तूलानी और गैर मामूली थी। कुरान ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का अरसा 950 साल बताया है और साबिका उम्मतों में तवील जिंदगियों की खबर दी है। और रिवायात में भी, बाज़ रिवायात और अहादीस में भी हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तवील उम्र की तरफ इशारे हुए हैं। उनमें से हजरत इमाम सजाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हमारे कायम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास पैगंबरों की बात सुन्नतें हैं और हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से आप अलैहिस्सलाम को मिलने वाली सुन्नत तवीलुल उम्र ही है। और हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से मरवी है कि खुदावंद मुतआल मेरे भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नवे फर्जंद को तवील उम्र अता फरमाएगा और फिर आप अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से 40 साल से कम उम्र के नौजवानों की सूरत में जाहिर फरमाएगा। हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मस्कन यानी रिहाइश गाह कहाँ पर है? हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की रिहाइश गाह को अगर देखा जाए तो ग़ैबत सुगरा और ग़ैबत कुबरा के हवाले से मुख्तलिफ है। जैसे कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत से लेकर ग़ैबत सुगरा तक आप सामरा में ही सुकूनत पजीर थे। इस दौरान सरदाब में इबादत और जिंदगी बसर कर रहे थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक आप अपने वालिद माजिद की हयात में कई बार सरदाब में देखे गए हैं। और बाज़ रिवायत इशारा करती हैं कि ग़ैबत के दौरान आप अलैहिस्सलाम का मस्कन ना मालूम है। इसके बावजूद बाज़ दीगर रिवायात के मुताबिक आप ज़ीतवा, कोह रिज़वी और तय्यबा मदीना में सुकूनत रखते हैं, क्योंकि ग़ैबत सुगरा के दौरान नवाब अरबा आप अलैहिस्सलाम के साथ राब्ते में थे। और कहा जा सकता है कि ग़ैबत का एक अरसा आप अलैहिस्सलाम ने इराक में भी गुजारा है। और इब्ने कीम जोजी और इब्ने खुल्दून ने इल्ज़ाम लगाया है कि शिया मोतक़िद हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ग़ैबत के दौरान सरदाब में रहते हैं और वहीं से ज़ुहूर फरमाएंगे, लेकिन जबकि शिया एतकादी कुतुब में से इस तरह का कोई अकीदा नहीं मिलता। और जबकि शिया उलमा के नज़दीक इस मकाम का तक़द्दुस का सबब यह है कि ये इमाम जनाब हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़माने में 12वें इमाम महदी अलैहिस्सलाम का मस्कन और मकाम इबादत था। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो से ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल हुआ होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।